Assalamualaikum, beta. So, yes, this is the solution for the paper, which is February, March 24, and paper two, obviously. So, let's start with the question number one. Question number one is says that bismuth is an element in a group 15 of the periodic table, means group 5 of the periodic table, okay? And it clearly says that bismuth has a metallic character, okay? So it has a metallic character, means it is a metal or it is a non-metal with a more metallic character, clear? So it react or it behave like a metal. Draw a label diagram to show the metallic bonding. Okay, so whenever you know that we draw the dot and cross diagram for the ionic compound, we draw the dot and cross diagram for the covalent compound, but for metals, this simple diagram with some positive charges and the negative charges. Remember, we are normally doing it in O level. So you have to draw some positive charges. Okay, just draw these circles like this with slightly gap in between them. Okay. Clear? You can draw a box. Normally, we're drawing a box, and then you draw the negative charge electron. Okay, so this is basically the standard representation of a metallic bonding. Okay, you can label this diagram. You say this negative charge is basically the delocalized electron, and these are the positively charged metal ion. Okay, but अगर चाहें तो you can identify this delocalized electron and this positive charged plasma ion. ठीक है बेटा, so that's how you draw the dot and cross diagram. Bismuth reduces water to form bismuth oxide, BiO2, a colorless gas that ignite with a squeaky pop sound, means hydrogen gas की बात हो रही है, ठीक है? All metal react with water, forming their respective metal oxide and a hydrogen gas. ठीक है? So let's draw the reaction. So this is Bi plus H2O, and it's forming Bi2O3 plus hydrogen, and you can write down. So this is a solid, okay? And this is solid and water is liquid. Now you have to balance this one. So for balancing, you have to place Bi2 है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, and then you have oxygen, hydrogen, ठीक है. So if I place 3 here and 3 here, it's a balanced chemical equation. BiO2 is a yellow insoluble solid. Okay, it is a solid, but it is insoluble. Okay, it melt at 1095 Kelvin and molten compound conduct electricity. Okay, so deduce the structure and bonding of BiO2. Now, अब इधर देखिए molten compound conduct electricity. That's the property of an ionic compound. High melting point is a property of an ionic compound. Okay, solid is a property of a ionic compound. But there's an issue with the insoluble because mostly the ionic compound are soluble in water. But you know that if you have an ionic compound with some covalent character, that ionic compound is going to be partially soluble or insoluble in water. Okay, clear? So basically, the property and the bonding in Bi2O3 is an ionic compound. It has ionic bonding and giant ionic lattice structure. Again, that's basically the structure of any ionic compound. It is insoluble in water as it has some covalent character.
ठीक है बेटा, क्लियर। BiO2 can be used to form NaBiO3 as shown equation is given, reduce the oxidation number of Bi in BiO2. Okay, so yes, BiO2, sorry, Bi2O3, and you have to calculate the oxidation state of Bi. So हम लिखेंगे इसे 2Bi plus 3 times of -2, which is oxygen, is equals to 0 because the overall charge is 0. So 2Bi is equals to +6 and Bi is equals to +3. So the oxidation state of Bi is +3. Now, NaBiO3, sodium is +1 because it belongs to group 1 of the periodic table. So +1 for sodium plus Bi की oxidation state हमें पता करनी है, is equal to -2 is equals to 0. ठीक है? So Bi -5 is equals to 0. ऐसे ही क्लियर। सो Bi की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी बेटा, +5. सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Bi is +5. That's how you calculate or you find out the oxidation state of any element. ये वही स्टैंडर्ड मेथड है जो हम कई बार कर चुके हैं। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? सो नाउ आइडेंटिफाइड the reducing agent in equation 1. You can see you have to identify the reducing agent. Clear? अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Bi +3 से +5 में जा चुकी है। ठीक है ना, तो इट सेल्फ इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। BiO2 खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। आप देखें BiO2 में Bi +3 से +5 में चला गया, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसका मतलब इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है विच इज Bi2O3, इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यू कैन सी द ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत क्लियरली है। Bi की BiO2 में कितनी है, +3, और NaBiO3 विच इज अ प्रोडक्ट, उसमें कितनी है, +5। ठीक है, तो एजेंट क्या हुआ, yes, this one is acting as a reducing agent, and Na2O or O2, oxygen, both are acting as an oxidizing agent. Technically the oxygen is acting as an oxidizing agent. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं and let's see. NaBiO3 is an oxidizing agent. NaBiO3 is an oxidizing agent with the similar properties as KMnO4. It says that KMnO4 वाली exact properties इसके पास हैं। ठीक है, clear? Or isn't NaBeO4? Yes, you can see that the reaction is taking place and your compound is getting converted to uh, a ketone. ठीक है ना? This is a ketone and an aldehyde. ठीक है बेटा, एल्डिहाइड Z इज आपको बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि Z जो है वो एक एल्डिहाइड है, प्रोपेनॉन और इथेनॉल। Explain the meaning of the term oxidizing agent. Oxidizing agent is something that itself get oxidized and reduces others. ठीक है, तो जो खुद ऑक्सीडाइज होता है दूसरे को रिड्यूस करता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो ऑक्सीडाइजिंग, जब भी वो आपसे पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट की वाइस वर्ड्स होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट reduces itself and oxidizes other. It रिड्यूस होता है गेन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। ठीक है, रिड्यूस होने के लिए आइदर इलेक्ट्रॉन गेन करें या हाइड्रोजन गेन करें। कंपाउंड एक्स फॉर्म फ्रॉम मिथाइल ब्यूट 2 इन रिएक्ट विद KMnO4। ये जो आपके पास कंपाउंड एक्स है वो कह रहा है कि ये बना है मिथाइल ब्यूट 2 इन से। सही है, तो हम मिथाइल ब्यूट 2 इन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, एंड दिस इज डबल बॉन्ड एट पोजिशन नंबर 2। ठीक है, एंड इज अ मिथाइल ग्रुप हेयर। क्लियर? अब इसका किसके साथ रिएक्शन करवाएं कि हमारे पास कंपाउंड एक्स बन जाए, तो कैन सी दिस इज बेसिकली एन एल्कीन, है ना, ये एक एल्कीन है, एंड दिस वन हैव टू OH प्रेजेंट, सो इट इज अ डायोल। तो एल्कीन से डायोल बनाने के लिए वी यूज कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4।
ठीक है, कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4। सही है, डन। अच्छा, कंपाउंड, complete the table 1.1 to show the observed when compound Y and Z reacts with separately with named reagent. Sodium carbonate, you know that the sodium carbonate only reacts with carboxylic acid. Now look at the compound Y and C. Now the compound Y and compound C, it's one aldehyde and the other one is a ketone. There's no carboxylic acid present. So none of these react with sodium carbonate. Sodium carbonate के साथ सिर्फ acid react करते हैं. Alkaline aqueous iodine. Yes, इसके लिए आपको कंडीशन याद होनी चाहिए. Ketone with the C double bond O on the second carbon, like methyl ketone. Ethanol, ठीक है ना? These are basically and secondary alcohol with the OH on the second carbon. ठीक है, ketone with the OH on the second carbon, secondary alcohol with the ketone with C double bond O on the second carbon. Let me write it down. CH3 C double bond O होना चाहिए. Any secondary alcohol with OH on the second carbon. उसके अलावा you have CH3 CH2OH ethanol and CH3CHO ethanol. These are the group that give this test positive. Try iodomethane test. सही है? अब देखते हैं कि हमारे पास कंपाउंड Y और Z में क्या है. So you can see ketone है, propanol है. Yes, it has C double bond O on the second carbon. So yes, it will give this test. And the second one, Z, is basically ethanol. Ethanol is the only aldehyde that they give this test positive. ठीक है, तो yes, this gives positive. So आप लिखेंगे yellow PPT, येलो पीपीटी, दोनों में येलो पीपीटी आएंगे. ठीक है, और येलो पीपीटी आपके पास आते हैं CHI3 के. चाहे तो लिख दें येलो पीपीटी ऑफ ट्राई आयोडोमीथेन. 2,4 DNPH एल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, एंड यू नो दैट इट गिव रेड ऑरेंज पीपीटी. सही है, रेड ऑरेंज पीपीटी. ठीक है बेटा, टॉलियंस रिएजेंट only react with an aldehyde, और aldehyde कौन सा है? Z. So yes, no reaction for this one, and this one give a silver mirror. ठीक है, very important test for the presence of aldehyde, ketone and triiodomethane tests are very important. Considering the equation for the reaction of Z with NaBH4, you know that NaBH4 is basically a reducing agent. और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम इस तरह से H का साइन यूज कर सकते हैं. उसने कहा H से रिप्रेजेंट करना, मींस वी डोंट हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन विद NaBH4, बल्कि हम उसकी जगह पर H यूज करेंगे. और Z हमारे पास क्या है बेटा? Z है हमारे पास इथेनॉल. तो इथेनॉल इज CH3CHO. नो नीड टू राइट डाउन इट इन अ स्केलेटन फॉर्म. प्लस H पॉजिटिव फॉर्मिंग. अब इथेनॉल रिड्यूस होके बनाता है इथेनॉल. सो CH3CHOH. और साथ में क्या बनेगा? साथ में आपके पास इसमें बनेगा, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ प्रोडक्ट और बननी चाहिए. ठीक है, क्लियर. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में नॉर्मली द वाटर बनता है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट में आपको सिर्फ हाइड्रोजन ऐड करना है. ठीक है, और कितने हाइड्रोजन ऐड किए हैं आपने यहाँ पर? You just added 2 hydrogen. So this is the equation for the conversion of ethanol, which is an aldehyde. After reducing it, converting ethanol. No need to write down the name. ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ. 1 मार्क की सिर्फ बैलेंस इक्वेशन लिखनी है. make sure कि when you write down this equation, आप यहाँ पर बैलेंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिखें. ठीक है, हाइड्रोजन must be balanced. ठीक है बेटा, अगर कीटोन होता वो सेकेंडरी अल्कोहल में चला जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड होता, LiLH4 के साथ रिएक्शन होता, तो वो चला जाता प्राइमरी अल्कोहल में. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन बाय यूजिंग अ साइन ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ NaBi can be used to determine the concentration of Mn2 plus. ठीक है, the ionic equation for the reaction is shown below. Ionic equation is given because they want to give you the molar ratio of it. A student uses the following procedure in an experiment. Add 100 centimeter cube of a saturated solution of Mn2 plus. Mn2 plus का 100 cm cube solution add किया किसमें? Volumetric flask में. Volumetric flask is normally used to make dilution.
ठीक है ना, डाइल्यूशन कर रहे हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कुड बी फॉर 100 cm क्यूब। मोर कॉमनली वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 250 सेंटीमीटर क्यूब की होती है। 1000 cm क्यूब की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी हो सकती है। ठीक है। एड डिस्टिल वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन टू 1 dm क्यूब, यानी ये आपके पास सॉल्यूशन बना रहे हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब की फ्लास्क में। 100 सेंटीमीटर क्यूब लिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन और 1000 में उसे डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद कहा टाइट्रेट 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब उस डाइल्यूटेड में से 25 सेंटीमीटर क्यूब निकाला गया है, सही है, और उसे NaBH4 के 0.1 मोल पर डीएम क्यूब के साथ टाइट्रेट किया। सही है, बिरेट में आपने क्या क्या फुल किया था? NaBiH4। यहाँ सिर्फ एक एक छोटी सी ट्रिक है कि इसमें डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगेगा एंड में। द 25 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट MnO4 जो आपने 25 लिया था एग्जैक्टली रिक्वायर्ड 21.50 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर cm क्यूब ऑफ डीएम क्यूब ऑफ 10 यानी इसका आपके पास NaBiOH4 का वॉल्यूम भी गिवन है और कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है। अगर मेरे पास NaBiH4 BiO3 विच इज दिस वन, ये है BiO3, अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएं तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mn2 प्लस इन दिस 25 सेंटीमीटर क्यूब। और फिर मैं रेशियो लगा के 1000 सेंटीमीटर क्यूब में भी निकाल सकता हूँ, या फिर मैं उसके बाद डाइल्यूशन भी का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता हूँ। So, सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे BiO3 के। कंफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पर BiO3 नेगेटिव लिखा है और आपको एक डिस्क्रिप्शन में NaBiO3 लिखा है। बात एक ही है, अगर आप Na हटा देंगे तो -1 चार्ज आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे बेटा NaBiO3 के which is 21.50 divided by 1000. Don't forget to divide by 1000 to convert it into a decimeter cube, multiply by 0.1। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स देख लेते हैं इसके कितने आ रहे हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे बेटा 2.15 इंटू 10⁻³ ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaBiO3। ठीक है, क्लियर। नाउ अप्लाई द मोलर रेशियो बिटवीन Mn2 प्लस and NaBiO3 which is according to the equation 2:5। right, so NaBiO3 के आपके पास मोल्स कितने थे? 2.15 इंटू 10⁻³ और इसके x होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे Mn2 प्लस के, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। 1 मिनट। सो ये आएगा 8.60 इंटू 10⁻³ ठीक है, दीज आर द मोल्स। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, दो ऑप्शन क्या है? ये मोल्स किस में आए बेटा? ये मोल्स आए आपके पास 25 सेंटीमीटर क्यूब में। सही। अब आप इस पे रेशो लगाएंगे, 25 सेंटीमीटर क्यूब में इतने मोल्स हैं तो 1 डीएम क्यूब यानी 1000 सीएम क्यूब में कितने मोल्स होंगे? तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। सेम वुड बी द मोल्स इन दैट 100 सीएम क्यूब। आप डिवाइड बाय 100 कर दें। इससे भी आसान तरीका ये है, आप सबसे पहले इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लें। कैसे निकालेंगे? आपके पास मोल्स कितना है? 8.60 इंटू 10⁻³ ठीक है, इसको डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 25/1000 कर दें, तो आपके पास नंबर ऑफ, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, और ये कॉन्सेंट्रेशन आपके पास होगी उस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की। तो मैं इससे क्या कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 1000, so 0.0 which is equals to 0.0344। ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब। यहां तक का काम तो आसान है। आपने क्या किया, 25 सेंटीमीटर क्यूब में मोल्स निकाले और उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाली, बट मेक श्योर दैट यू नो दैट दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब और यही कॉन्सेंट्रेशन होगी। ये देखें हुआ क्या है, यू हैव अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है,
दिस इज अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इसने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऐड किया और आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बना। इस 1000 सेंटीमीटर क्यूब में से 25 cm क्यूब लिया। अब आपके पास 25 सेंटीमीटर क्यूब की कॉन्सेंट्रेशन है 0.0344। क्लियर? इसकी भी तो कॉन्सेंट्रेशन सेम ही होगी क्योंकि इसी में से तो निकाला था ये। सही है ना, सेम कॉन्सेंट्रेशन होगी। अब सिर्फ फर्क क्या है कि हमारे पास ये कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है डाइल्यूटेड की, हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो अब उसके लिए आप लगा दें C1V1 इज इक्वल टू C2V2। क्लियर? 0.0344 का सॉल्यूशन बनाया था आपने 1000 cm क्यूब, और जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है, और उसका वॉल्यूम आपने लिया था 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी which is concentration for the concentrated solution 0.0344 multiplied by 1000 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 0.344 मोल पर डीएम क्यूब। तो ये आंसर होगा 0.344 मोल पर डीएम क्यूब। अब आप इसको जिस तरह दिल चाहे वैसे सॉल्व कर लें। सबसे आसान तरीका यही है कि आप डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लीजिए 25 सेंटीमीटर क्यूब में। वही सॉल्यूशन होगी पूरे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की, वही कॉन्सेंट्रेशन होगी, और उस पे डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगा के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू सॉल्व दिस वन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। Question number two is about the reaction of chlorine reacts with, तो थोड़ा सा bonding and structure होगा और थोड़ा सा periodicity group 2 group 7 से related होगा। Chlorine reacts with many element and compound to form chloride. Table show। ठीक है जनाब, सोडियम का क्लोराइड है, फॉर्मूला है NaCl। मैग्नीशियम का क्लोराइड है, द फॉर्मूला इज MgCl2। सिलिकॉन का क्लोराइड है SiCl4 होता है, यू नो दिस फ्रॉम द periodicity। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर, यस, मैग्नीशियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, सो इट हैज अ जायंट स्ट्रक्चर एज वेल। SiCl4 is a covalent compound, हम पढ़ चुके हैं periodicity में, it has simple molecular structure। Bonding in chloride basically ionic bonding है, bonding in chloride is basically ionic bonding है, और SiCl4 में covalent है। अगर आपको SiCl4 का स्ट्रक्चर याद नहीं भी आ रहा था तो आपको इस कोवलेंट से पता चल जाना चाहिए। तो कोवलेंट में सारे सिंपल मॉलिक्यूलर होते हैं, सिर्फ आपके पास डायमंड, ग्रेफाइट एंड SiO2 हैव द जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं 7.0 का सॉल्यूशन बनता है। SiCl4 को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन बनता है विद अ pH ऑफ 3 to 4। ठीक है, सॉरी 2 to 3। तो आप 2 या 3 दोनों लिख सकते हैं। वैसे आई रिमेम्बर कि शायद pH 2 का सॉल्यूशन था। कंप्लीट द टेबल हमने कर दिया। व्हेन क्लोरीन reacts with cold NaOH, chlorine is both oxidized and reduce the product or NaCl, ठीक है, and a G। State the type of redox reaction in which the symmetry oxidize and reduce is called disproportionation। A single element getting oxidized and reduced, it is possible कि वो आपसे disproportionation की definition पूछ ले। ठीक है, तो याद रखिएगा if a single element is getting oxidized and reduced in the same chemical reaction। जी, आपको पता है कोल्ड के साथ NaClO बनता है। ठीक है, सोडियम क्लोरेट 1। Clear? Write an equation for the reaction of Cl2 with hot sodium hydroxide। So yes, Cl2 plus NaOH, ठीक है, forming NaCl plus NaClO3 plus H2O। सही, एंड देन यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। इसकी बैलेंसिंग आप देख लीजिएगा, और आई सेड मैनी टाइम कि यू हैव टू मेमोराइज द बैलेंसिंग ऑफ दिस वन। ठीक है, ये वाली इसकी बैलेंसिंग आपको याद करनी पड़ेगी। जहां तक मुझे याद है आई थिंक 3 6 5 3 था, तो मेक श्योर दैट यू मेमोराइज। तो 3 6 5 5 + 1 6 हो जाएगा,
एंड हाइड्रोजन हो जाएंगे 6 हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड and plus 3 here. Okay, so make sure that you memorize a balanced equation of both with cold KMnO4, cold sodium hydroxide and with hot sodium hydroxide. Okay, describe fully what is observed when AgNO3 is added to the aqueous solution of the chloride of sodium followed by NH3. Yes, chloride give white PPT. Okay, white precipitate form soluble in dilute NH3. ठीक है, व्हाइट पीपीटी soluble in dilute NH3 आपको अच्छी तरह पता है. An excess of chlorine react with phosphorus to form PCl5. ठीक है, PCl5 is a simple molecule in a gas phase, PCl5. ठीक है, it also exists in a solid form in two ions, PCl4 and PCl6. ठीक है, पहले तो ये बात याद रखिएगा, phosphorus is in a group 5 of the periodic table. It has 5 outermost इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में एंड मेकिंग 5 कोवलेंट बॉन्ड, तो आपको याद होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का था, 3 4 5. ठीक है, ऑल दीज आर द क्लोरीन एटम एंड दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाय पिरामिड. ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर के साथ टेट्राहीड्रल, 5 बॉन्ड पेयर के साथ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, टेट्रा और 6 बॉन्ड पेयर के साथ ऑक्टाहेड्रल शेप. ठीक है, तो यस, दिस इज द टेट्राहेड्रल 4 बॉन्ड पेयर के साथ उसने खुद ही दे दी है. मैं एक दफा आपको दिखा देता हूँ शेप्स ताकि ये दोबारा से आपको एक रिमाइंडर आ जाए. तो बॉन्डिंग की तरफ जाते हैं एंड लेट्स सी. ओके, बॉन्डिंग. ओके ओके, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर. ओके, दीज आर द सिमेट्रिकल शेप. ठीक है, you can see 4 bond pair, 0 lone pair के साथ tetrahedral, and you have 4 bond pair, 5 bond pair, 0 lone pair के साथ शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप थी और 6 bond pair के साथ ऑक्टाहेड्रल शेप थी. ठीक है बेटा, सो दिस इज द शेप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. ठीक है, एंड यहाँ पर देखें ये नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है. नेगेटिव चार्ज इसलिए आ रहा है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैक्सिमम 5 बॉन्ड्स ही बना सकता है. ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेकर इसने क्लोरीन के साथ एक और बॉन्ड बनाया, तो 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर का केस है एंड दिस इज बेसिकली द शेप इज ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, सो दिस इज द ऑक्टाहेड्रल शेप. PCl5 रिएक्ट विद J to form H3PO4. PCl5 को किसी कंपाउंड J के साथ रिएक्ट कराए तो H3PO4 बना. आइडेंटिफाई द कंपाउंड J, फॉर श्योर इट इज वाटर. ठीक है, एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन, वाटर के साथ जब भी रिएक्शन होता है याद रखिएगा कि दिस इज अ टाइप ऑफ अ रिएक्शन जिसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं. सही है ना, वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोलिसिस होता है. आयनिक कंपाउंड नॉर्मली वाटर में डिसॉल्व होते हैं. ठीक है, so they normally get ionized in water. Hydration कहलाता है. All covalent compound that react with water forming an acidic solution, the type of reaction is called the hydrolysis. ठीक है, clear. आगे चलते हैं. क्लोरीन reacts readily with propene to form compound J1, 2. ठीक है जनाब, ये प्रोपीन है. प्रोपीन का मतलब this is CH3
CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ हुआ तो ये कंपाउंड बन गया 1 2 3। ठीक है, एंड ऑन द सेकेंड एंड द थर्ड फर्स्ट कार्बन यू हैव टू क्लोरीन प्रेजेंट। इस तरह से मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद कंप्लीट द फिगर 2.2 शो दैट मैकेनिज्म ऑफ द क्लोरीन विद प्रोपीन। इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सो यस, की पॉइंट क्या है? सबसे पहला की पॉइंट ये है कि यू हैव टू शो ऑल दी लोन पेयर्स। ठीक है, ये है इंक्लूड चार्जेस डायपोल लोन पेयर एंड सही है जनाब। तो मैं लोन पेयर बना देता हूँ क्लोरीन के। सही है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। यहां से ये इसके ऊपर अटैक करेगा, दीज टू इलेक्ट्रॉन शिफ्ट देयर। सो कार्बन कार्बन, वन हाइड्रोजन, एक क्लोरीन आके ऐड हो जाएगा, ड्रॉ द लोन पेयर ऑफ क्लोरीन एंड यू हैव टू हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन, इसको एक CH3 कर देते हैं, वन हाइड्रोजन ऑलरेडी देन दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। ओके, एंड दिस इज बेसिकली द कार्बोकैटाइन फॉर्म। उसके बाद आप चाहें तो एक और क्लोरीन यहां पर दिखा दीजिए। ठीक है, विच इज नेगेटिव, और इसका अटैक इसके ऊपर। Clear? So that's basically the free radical, sorry, the electrophilic addition reaction. Identify the reagent condition for reaction 2. Reaction 2 में आपको नजर आ रहा है कि दिस इज क्लोरीन से एल्कीन बन रहा है। ठीक है, यानी आपके पास रिमूवल हो रहा है या एलिमिनेशन हो रही है Cl की, क्लोरीन की एलिमिनेशन हो रही है। और क्लोरीन की एलिमिनेशन के लिए आपको ये बेसिकली दिस इज द टाइप ऑफ रिएजेंट एंड कंडीशन। आप हैलोजेनो एल्केन यानी क्लोरो एल्केन को जब आप रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ, तो Cl की जगह OH आ जाता है। ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर आप उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एलिमिनेशन होती है। तो आपको यहाँ पे लिखना है NaOH इन एथेनॉल। ठीक है, हीट अंडर रिफ्लक्स कंडीशन। सही है जी, क्लियर? सो दिस इज बेसिकली हैलोजेनो एल्केन टू एल्कीन, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एथेनॉल चाहिए होता है। ड्रॉ वन रिपीट यूनिट ऑफ द एडिशन पॉलीमर दैट फॉर्म फ्रॉम एल। अब जरा एल को देख लेते हैं। 1 2 3, एल इज दिस वन, CH3 CH, सॉरी CH3C, एक क्लोरीन लगा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है और CH2 है। सही, तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं ताकि मेरे लिए इसे बनाना आसान हो जाए। तो दिस इज CH3CCl डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे इसका रिपीट यूनिट बनाना है, ड्रॉ वन रिपीट यूनिट। सो व्हाट, आइडेंटिफाई द कार्बन्स बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड। दीज आर द टू कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड। मैंने इन दो कार्बन को डिस्प्लेड फॉर्म में लिखा। ठीक है, क्लियर? इस कार्बन से एक लाइन निकाली, ब्रैकेट लगाया। On the first carbon, you have one CH3 and one chlorine. On the second carbon, you have both hydrogen atoms. So that's basically the repeat unit. यहाँ पर N लिख दीजिए. So this is basically the repeat unit. Clear? This is one repeat unit. आपको क्या करना है? अपने मॉलिक्यूल को पहले आइडेंटिफाई करना है। They given you in a skeleton form. आप आंसर skeleton में भी लिख सकते हैं, but I recommend to write down the answer in a displayed form. ठीक है? Clear? स्केलेटन में भी आप इसे लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं स्केलेटन बना देता हूं इसका। दिस इज बेसिकली CH3। ठीक है, क्लियर? और यहाँ पर एक और CH3। This is basically these are the two carbon, one and two carbon. The first one पे एक CH3 लगाया, मैंने ऊपर लगा दिया, एक क्लोरीन लगाया नीचे लगा दिया, और फिर दूसरे वाले पे you have two hydrogen, we do not show any hydrogen. ठीक है, so I recommend to do it like this, whatever suits you, जो आपको समझ आए। Now question number 3 की तरफ जाते हैं। A nitrogen is generally an unreactive molecule, but it does react under certain condition. Give two reasons explained by the reactivity of lack of reactivity of nitrogen. Nitrogen curing. The first reason, it has a strong triple covalent bond. ठीक है, क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी, it is a typical non-polar molecule.
यहाँ आप लिख सकते हैं हाई एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन सिर्फ हाई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो आप लिखेंगे इट हैज अ स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, सो हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्लियर? या तो ये पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर आपने सिर्फ लिख दिया हाई एक्टिवेशन एनर्जी टिपिकल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड लिखना जरूरी है, ठीक है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव, ठीक है। राइट एन इक्वेशन टू शो द फॉर्मेशन ऑफ NO। अब यहाँ देखिए N2 रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एन इंटरनल कंबस्शन कार इंजन टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ NO एंड NO2। सही है। रिएक्शन 1 में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये दोनों चीजें बना रहे हैं। रिएक्शन 2 में NO2 रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है वाटर के साथ रिएक्ट करके। NO2 अनबर्न हाइड्रोकार्बन के साथ परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये हम पढ़ चुके हैं फोटोकेमिकल स्मॉग में, वो बना रहा है। राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ NO NO2 इन रिएक्शन 1। सो हमें इक्वेशन देनी है N2 प्लस O2 फॉर्मिंग NO प्लस NO2, ठीक है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस, ये सारी गैसेस हैं, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अगर इफ आई प्लेस टू, और यहाँ पर राइट साइड पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो अगर मैं ऑक्सीजन को इवन नंबर में कन्वर्ट कर लूं तो मेरे पास ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन अब नाइट्रोजन मेरे पास 3 हो गए। तो अगर मैं यहाँ भी 2 लगा दूं तो 4 नाइट्रोजन एंड प्लेस 2 हेयर, right? To the four nitrogen balance है, 2 oxygen and 6 oxygen on the right hand side. So I place 3 here, and it is the balanced chemical equation. You can balance it in any other way, ठीक है। आप 3/2 भी लगा सकते हैं, यानी इसको बैलेंस करने का एक और आसान तरीका क्या है कि आपके पास यहाँ दो नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 3, तो यू प्लेस 3/2। बोथ आर करेक्ट। 1.5 भी लिख सकते हो, 3/2 भी लिख सकते हो, और पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। गिव द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट इन रिएक्शन 2। NO2 जब आपके पास रिएक्ट करता है तो आपके पास HNO3 मिलता है, सही है। नाइट्रिक एसिड सम टाइम कुछ जगह पर आपको HNO2 भी लिखा हुआ नजर आएगा, क्लियर। लेकिन ज्यादा केसेस में आप HNO3 ही आंसर लिखेंगे। स्टेट 1 एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिएक्शन 3। रिएक्शन 3 हम पढ़ चुके हैं, दैट्स द फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। दिस इज द फोटोकेमिकल स्मॉग। नाउ द हेबर प्रोसेस इन्वॉल्व द रिएक्शन। अब सवाल ये आएगा कि हेबर प्रोसेस तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो जनाब हेबर प्रोसेस से रिलेटेड उसने क्वेश्चन आपसे पूछा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेबर प्रोसेस जो है वो आप आपसे करवा रहा है। वो मतलब वो सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहा है अबाउट द हेबर प्रोसेस, सही है, क्लियर। A catalyst is used to allow the process to carried out at a lower temperature, ठीक है। लो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है ना, एंड प्रेशर। इक्वेशन गिवन है, ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। मैं जब भी पढ़ता हूँ मैं इस तरह की चीजें मार्क कर लेता हूँ। यूज इन्फॉर्मेशन सी टू कंप्लीट द टेबल। कंपाउंड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन की वैल्यू लिखनी है, किसकी? नाइट्रोजन की। यू नो दैट बोथ ऑफ दीज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर एलिमेंट्स, so what should be the formation value? 0, ठीक है। In a similar way they ask about the formation of NH3। can you look at this equation? Yes, ammonia is formed from nitrogen and hydrogen. This equation is the equation for the formation of ammonia, but the only problem is that कि यहाँ पर कितने moles बन रहे हैं? 2 moles, and we need it for 1 mole। फॉर्मेशन में हमेशा कितना बनता है? 1 मोल बनता है। यहाँ कितने बन रहे हैं? 2 मोल्स। सो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ NH3 बन जाएगी, क्योंकि बाकी सारी चीजें ठीक है। हमारे लेक्चर में हम कई बार कर चुके हैं कि अगर एलिमेंट्स हो, प्रोडक्ट भी बन रही हो, लेकिन प्रोडक्ट के 1 मोल ना बन रहे हो, बाकी सारी चीजें ठीक हो, तो जितने मोल्स बन रहे हैं आप उससे डिवाइड करके डू इट फॉर 1 मोल। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी? -92 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा
46. ठीक है, clear? So that's how you fill the table. Explain why the presence of catalyst affect the rate of reaction. Uh, the rate of reaction increases. बल्कि हम पूरा स्टेटमेंट उस तरह दे देते हैं, catalyst increases the rate of reaction by lowering the activation energy as it performs the same reaction through an alternative route. That's it. ठीक है? State and explain the effect, if any, on the rate of Haber process as the pressure is lowered. अच्छा, अब देखें, इफेक्ट पूछा है किसका? लो प्रेशर का ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. तो आप देखेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस as the pressure is lowered. इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग एक अलग चीज है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन अलग चीज है. इक्विलिब्रियम तो शिफ्ट होगा अपने हिसाब से, ठीक है ना? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, वो एज पर द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट ऑन बोथ साइड. लेकिन रेट पे अगर इफेक्ट पूछा है टेम्परेचर का, प्रेशर का, तो आप हमेशा इफेक्ट ऑफ प्रेशर में ये बताएंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में बताएंगे प्रेशर बढ़ाने से रेट बढ़ा, प्रेशर कम करने से रेट कम हुआ. ठीक है, क्लियर? तो आप लिखेंगे एज there are less number of moles of reactants present in the given. नहीं, सॉरी, मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट मुझे चेंज करना पड़ेगा. प्रेशर का इफेक्ट है ना, एज there are same number of moles present in large volume. यानी एक तरह से थोड़ा सा लेस क्राउडी हो गया ना. ठीक है, क्लियर? प्रेशर डिक्रीज करने से यही होता है, वॉल्यूम बढ़ाते हैं ना प्रेशर डिक्रीज करने के लिए. डी पार्ट, N2F2 is a molecule that has a double covalent bond present between the nitrogen atom. ठीक है ना? तो नाइट्रोजन के दरमियान आपके पास क्या है? You have a double covalent bond present between the nitrogen atom. This consists of a sigma and a pi bond. Double covalent bond में sigma और pi bond होते हैं दोनों. क्लियर? अब देखो, एक फ्लोरीन है यहाँ पर और एक फ्लोरीन है यहाँ पर. That's how you have to make the covalent bonding. तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं फ्लोरीन को. सही है. और डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं एक नाइट्रोजन को, एंड सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं दूसरे नाइट्रोजन को. ठीक है. सो डबल कोवलेंट बॉन्ड में डॉट सर्कल डॉट सर्कल. लेट्स सपोज दिस वन इज द डॉट वन, तो ये डॉट क्रॉस हो जाएगा. दिस इज द सर्कल वन, तो ये सर्कल और क्रॉस हो जाएगा. ठीक है. और उसके बाद आप फ्लोरीन के सारे बॉन्ड पूरे करेंगे. सो 1 2 3 4 5 6. ठीक है. हमेशा याद रखिएगा, हेलोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उसके बाद 3 लोन पेयर होते हैं. नाइट्रोजन की बॉन्डिंग चेक कर लेते हैं, 2 4 6 8, तो यहाँ पर एक लोन पेयर होगा. दिस वन हैव वन लोन पेयर एज वेल. सो दिस इज बेसिकली द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम. ठीक है, क्लियर? वैसे आपको बनाने के लिए डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कंप्लीट हो गई. सब कुछ इसने बता दिया था, नथिंग डिफिकल्ट, नथिंग
important, मतलब nothing tricky in this one. Deduce the hybridization of nitrogen in N2F4. The hybridization of nitrogen in N2F4 is basically sp2 hybridized. Clear? sp2 क्यों है? Making one sigma, sorry, two sigma and one pi bond. जब भी कोई चीज एक पाई बॉन्ड बनाती है, नॉर्मली कार्बन की तरह ही ट्रीट करेंगे, जैसे आपने कार्बन को ट्रीट करते हैं कि if the carbon is making one pi, no pi bond, sp3 hybridized, one pi bond, sp सॉरी sp लिख दें. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है जनाब, आपने क्या बनाना है? ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द पाई बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन. सही है. जैसे हम एल्कीन शो करते थे, बिल्कुल हम उसी तरह शो करेंगे. सो मैंने सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर दिए लाइन से. और आपको पता है कि पाई बॉन्ड के लिए वी ड्रॉ नॉर्मली ड्रॉ अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल. ठीक है, बल्कि पी ऑर्बिटल नहीं, उसने ड्रॉ ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द पाई बॉन्ड. So I think it's better to draw it like this. सही? Clear? So this is the minimum requirement. आप चाहें तो you can draw the orbital overlapping as well. आप चाहें तो आप orbital overlapping भी draw कर सकते हैं. फ्लोरीन मैं दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ क्योंकि कुछ इतना खास क्लियर नहीं है, तो मैंने कहा जब तक वो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ना ना बोले हम ड्रॉ नहीं करते, लेकिन अगर आप कर देंगे तो चल जाएगा, कोई इतना मसला नहीं है. तो पाई बॉन्ड बिल्कुल जिस तरह से एल्कीन में दे से के शोधी पाई बॉन्डिंग, तो हम क्या करते थे? हम इस तरह का ये मशरूम टाइप शेप बनाते थे. क्लियर? अब इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है. अब पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइड बाय साइड overlapping of unhybridized p orbital. ठीक है, a bond is formed by the side by side overlapping of unhybridized p orbital. ठीक है बेटा, तो एक बार सिंपल सा क्वेश्चन था, इट्स नथिंग डिफिकल्ट. Okay, let's move towards the next question, which is the last question. Compound S is used in a food flavoring, means it's an ester. नहीं, ester नहीं है. Compound S basically a carboxylic acid है. ठीक है, possible synthesis of S is shown below. तो ये कोई एक कंपाउंड है. एल्कीन से HBr का रिएक्शन हो रहा है, क्यों बन रहा है? KCN के साथ. हाँ, यस, CN लग रहा है, तो इट्स अ चेन लेंथनिंग रिएक्शन. यू नो दिस रिएक्शन क्वाइट वेल. PQRS शोन है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ये सारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं. P सिस्ट्रांस शो करेगा. Q और बाकी सब में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होना चाहिए. Complete the table 4.1 by identify tick type of stereo isomerism. ठीक है जनाब. स्टीरियोआइसोमेरिज्म जियोमेट्रिकल सिस्ट्रांस. पी पी तो सिस्ट्रांस शो करेगा, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है. ठीक है. क्यू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन क्यू में कोई डबल बॉन्ड. HBr के साथ रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ पर Br आ जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, तो एज द डबल बॉन्ड गेट एलिमिनेटेड, तो नो. आर में भी डबल बॉन्ड नहीं है, एस में भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस तो ये शो नहीं करेंगे. ठीक है, ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस को शो नहीं करेंगे. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें भी है, क्यू में है. ये दिस इज द कायरल कार्बन, सो यहाँ भी शो होगा. दिस इज द कायरल कार्बन, सो यहाँ भी शो होगा. ठीक है, बहुत आसान सा एक आइसोमेरिज्म का पार्ट है. गिव द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द क्यू. क्यू का स्ट्रक्चर फॉर्मूला देना है. सो एज आई सेड के यहाँ पर आप Br लगा दें या पहले Br और बाद में H लगा दें, इट्स अप टू यू. सो इट इज गोइंग टू बी CH3 CH2. ठीक है, CH ब्रैकेट Br CH3 2 ब्रोमो ब्यूटेन.
नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म इन स्टेप टू में आपके पास क्या हो रहा है जनाब? बी आर की जगह पर सी एन आ रहा है, यानी बी आर नेगेटिव की जगह सी एन नेगेटिव आ रहा है, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Complete the equation for the reaction of 3. R is represented by C4H9Cn. Reaction 3. ठीक है, H पॉजिटिव के साथ एक्वस के साथ रिएक्शन हो रहा है और कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बन रहा है। ठीक है, H पॉजिटिव एक्वस के साथ रिएक्शन हो रहा है और कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बन रहा है। तो आप इसके लिए क्या करें? जस्ट मेक द रिएक्शन H पॉजिटिव एक्वस, ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है। अगर आप देखें, द कन्वर्जन ऑफ CN2 कार्बो ऑक्सैलिक एसिड इज अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। वी ऐड H पॉजिटिव बिकॉज वाटर जो है वो पार्शियली आयनाइज होता है ना? सिमिलर वाटर जो है वो पार्शियली आयनाइज होता है, तो बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन वाटर के साथ ही हो रहा होता है, लेकिन हम H पॉजिटिव यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर देते हैं ताकि वाटर की आयनाइजेशन बढ़ जाए। तो मेक अ रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, इसको C4H9 COOH में कन्वर्ट कीजिए और साथ में आप बना देंगे NH3। ठीक है, अब बैलेंसिंग के लिए 1 3 और +4 हाइड्रोजन हैव टू प्लेस 2 हियर। देयर इज अनदर ऑप्शन टू राइट दिस, C4H9CN प्लस H2O प्लस H पॉजिटिव। सही है, यहां भी तो आप C4H9COOH लिखेंगे। अब आप अमोनिया नहीं बनाएंगे, H पॉजिटिव की वजह से NH4 पॉजिटिव मिलेगा। यू हैव बोथ ऑप्शन, आइदर यू राइट लाइक दिस और राइट लाइक दिस। ठीक है, दोनों में से जो ऑप्शन है, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, यू कैन राइट एनी ऑफ दीज इक्वेशंस। अगर आप H पॉजिटिव भी लिख रहे हैं साथ में वाटर के, तो आपको अमोनियम आयन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अमोनिया जो प्रोडक्ट फॉर्म वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर कर बेटा for disconnecting. Okay, so the mass spectrum of U is given. Okay, clear? M+1 peak की abundance given है, M और M+1 peak दोनों की abundance given है. Use the data table 4.2 to show that it contains a 7 carbon atom. You know that the number of carbon का formula is equals to 100 over 1.1. multiply by abundance of M+1, which is this one, divided by over 1.1, multiply divided by 7 plus, just check. Multiply by 100 divided by 1.1. 6.94, which is nearly equal to 7.0. ठीक है, तो आपको आंसर, नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके पास आ गए 7। ठीक है, क्लियर, व्हाट द आंसर। आगे चलते हैं, आईआर स्पेक्ट्रम इज गिवन, और इस आईआर स्पेक्ट्रम में यू कैन सी देयर इज नो ब्रॉड पीक प्रेजेंट, तो इसमें OH कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, एंड इज अ सिग्नल प्रेजेंट एट अराउंड 15-16 1700 समथिंग। ठीक है, 1700 से
थोड़ा सा आगे 1730 1740 पर आ रहा है। देयर इज अ सिग्नल 1011 एंड ये अराउंड अराउंड 1200 के करीब एक सिग्नल आ रहा है एंड द सिग्नल प्रेजेंट अराउंड 3000 के करीब करीब। क्लियर? डेटा मस्ट बी गिवन एंड दिस इज द डाटा गिवन। क्लियर? एज पर दिस डाटा यू कैन सी कि आपके पास एक सिग्नल आ रहा है जनाब 1200 पर, और यहाँ आपको नजर आ रहा है कि इफ इट इज एन एस्टर, ठीक है, 1300 और 1200 वाली इसके रेंज में आ रही है। क्लियर? एंड दिस नो ब्रॉड पीक, तो हम सबसे पहले एस्टर को ही चेक करेंगे। ब्रॉड पीक होती है ना, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड चेक करते हैं। दिस अ सिग्नल अराउंड 1700 समथिंग। 1700 समथिंग पे आप देखिए, इफ यू हैव एन एस्टर, दिस अ सिग्नल अराउंड 1710 से 1750। There's a clear indication that there is an ester present। और एक सिग्नल आ रहा है 3000 समथिंग के ऊपर आपके पास। 3000 समथिंग के ऊपर आपके पास जो सिग्नल आता है नॉर्मली, वो आपके पास एल्केन का भी हो सकता है, क्योंकि एस्टर में बहुत सारे एल्केन है, एंड यू कैन सी द एल्केन हैव अ सिग्नल ऑफ अराउंड 3000 के करीब करीब 2850 से लेके 2950। तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट द फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इज एस्टर। ठीक है, और उसकी आप एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे? एक्सप्लेनेशन इसकी क्वाइट सिंपल, आप यही बात एक्सप्लेन कर देंगे कि आपके पास सिग्नल एट 1200 समथिंग, या हाँ चलो 1200 सेंटीमीटर इनवर्स इज ड्यू टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑफ एस्टर। फिर आप लिखेंगे अ सिग्नल, एब्जॉर्प्शन सिग्नल भी लिख सकते हैं, सिग्नल भी लिख सकते हैं, एट 1710 से लेके 1750 is due to carbon double covalent bond of ester। ठीक है, सी एच को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। टी हैज अ सिंगल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। टी कहाँ था जनाब? टी था यहां पर। उसने कहा टी के पास एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। यूज द इंफॉर्मेशन C1 एंड C2 टू आइडेंटिफाई टी एंड यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अब देखो सिंगल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यू के बारे में हमें पता चल गया कि यू इज एन एस्टर एंड दिस इज अ कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, दो बातें पता चल गई। कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म एन एस्टर। अब इस अल्कोहल में कितने नंबर ऑफ कार्बन है? वन टू, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 4 5। तो यू हैव 5 कार्बन प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल में कितने कार्बन होने चाहिए? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 7। 7 में से 5 कहाँ चले गए? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो 2 कार्बन। और 2 कार्बन वाला अल्कोहल क्या होता है? CH3CH2OH। कैसा? ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द CH3CH2OH। टी है आपके पास CH3CH2OH एंड द कंपाउंड यू। अब यू बनाना है तो यू तो आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा। आप यहां से OH निकालेंगे, ठीक है, और अल्कोहल को उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो आप बनाएं जनाब स्ट्रक्चर CH3CH2CH CH3। यहां था आपके पास COOH। सही है, तो COOH को हटाएंगे और आप इसे करेंगे CO2CH2CH3। ओके, इसको लिखने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। मिनिमम यू कैन राइट इट लाइक दिस। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3CH2CCH3। इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, CO2CH2CH3। You can write it like this as well। So दोनों तरीके ठीक है। You can write down the formula in a structure form as well। Oh sorry, skeleton भी, लेकिन उसने जब वो स्ट्रक्चर्स बोले तो नॉर्मली आप स्ट्रक्चर फॉर्म ही लिखेंगे। अभी हम जब ऑर्गेनिक के बाद में
कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे तो I'll let you know. सही है? तो दिस इज हाउ यू गोइंग टू सॉल्व. सो दिस इज ऑल अबाउट पेपर. एंड में आपको पास ये सारा डाटा गिवन होता है बेटा. तो इफ यू नीड एनी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, बेसिकली दिस इंफॉर्मेशन KW वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं वो A2 में इस्तेमाल होती हैं. और आपको जो है वो पीरियोडिक टेबल भी गिवन होगा. सही है? So that's it for the May June 24, sorry, February March 24 paper. I hope that this will help. So see you in the next session. Allah Hafiz.